Hello and Assalamu alaikum. Audience and participants of Startup Summer School 2020, welcome back. And we are into business model design session. And we're really excited कि आज हमें join किया है Mr. इख्तियार अहमद खुसो ने जो कि डायरेक्टर है Center for Entrepreneurial Leadership and Incubation at IBS Sakhar. So we're really excited to have you, sir. Welcome on board. Thank you very much, Imran. Really honored to be the part of this CGI. Thank you very much, sir. You always have been a very supportive professional. आपने हमें हर वेंचर में जो भी CGI ने शुरू किया उसमें हमें सपोर्ट किया. Thank you very much, sir. और मिस्टर इख्तियार अहमद has a rich experience in entrepreneurial design, entrepreneurial ventures. और ये अपनी सारी डिस्कशन आज की बिल्ड करेंगे बिजनेस मॉडल डिजाइन पे. कल से हमने डिजाइन थिंकिंग को बिल्ड करना शुरू किया. एक ओवरव्यू हमने डिटेल में कवर किया कि डिजाइन थिंकिंग और बिजनेस मॉडल कैनवस कल मैंने कवर किया. आज खुरम ने भाई ने उसको फर्दर बिल्ड किया कि कॉर्पोरेट्स कैसे डिजाइन थिंकिंग को यूज करते हैं और उसी डिस्कशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे. मिस्टर इख्तियार अहमद खुसो, थैंक यू वेरी मच सर एंड ओवर टू यू प्लीज. Sir, thank you very much. Imran, just want to ask, screen is fine? Yes, now it's fine. Yes, sir, we're good. Thank you very much, Imran, for introducing with the audience. और मेरे ख्याल से you have always been kind to me and to Sakhar IB University as well. And now I am addict of Imran, I would say to the audience. So let's start. Today I've designed this business model session basically उन लोगों के लिए. I think you are just laughing on this addict word. In fact, I'm being addict of your kindness and support to the Sakhar IB University. So आज dear audience, जो आज हम session start करने जा रहे हैं business model design. Basically, I've designed this session focusing जो early stage entrepreneurs हैं. जो प्रॉब्लम फेस करते हैं डिजाइनिंग देयर मॉडल्स. Apart from this model, the team that they have which faces the problem for designing this model, we will address that issue in deep. And this session specifically is focusing on practices, best practices and methodologies. We will cover all of, try in this limited time to cover all of these things. The one thing important I would suggest at this early stage of this first slide is that entrepreneur is all about the momentum and acceleration as well. ये इमरान हमेशा बात करते हैं acceleration की बात करते हैं. So it's all about the momentum. तो आप इसी चीज को मद्देनजर रखें. Once there is a business model design, this momentum is required from you people to carry on further. So let's move to the next slide. Imran, just I want to because the slides हो गए हैं. Yes, I would like to welcome all of you from all the provinces of Pakistan. Tansab Bhali Kare Aaya and Ji Ayanu from the Punjab and Khush Amdeed from all over the Pakistan. Pakhair from the KPK and Khush the Veshe Aatke. I am Baloch as well, so Veshe Aatke from Balochistan. So welcome to this. I would just because of this technology always disrupts. कुछ slides mix up हो गई हैं. मैं उनको exclude करूँगा और include उन slides को करूँगा जो हमारी आज की discussion में बहुत important है. Please, मैं बहुत boring हूँ and इमरान इसको अच्छी तरह जानते हैं. Please try to avoid this. Do not sleep during this session. So we'll keep it very lively, sir. This is the key which we will focus throughout our discussion. That's the business model design. और इस पे फोकस करेंगे कि बिजनेस मॉडल डिजाइन का वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ क्या एक लिंक है. उस पे उसको हम फोकस करेंगे. क्या वैल्यू प्रोपोजिशन इंपॉर्टेंट है उसको हम पहले बनाएं या फिर बिजनेस मॉडल डिजाइन पे हम पहले जाएं, इसको देखेंगे. और एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है जब हम बिजनेस मॉडल डिजाइन को करते हैं तो डिजाइन एटीट्यूड. आप डिजाइन थिंकिंग कल बात हुई थी, आज भी शायद बात हुई होगी. तो ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है जब हम स्टार्ट करते हैं डिजाइनिंग द बिजनेस मॉडल. तो डिजाइन एटीट्यूड को हम मिस कर जाते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स जो है वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हम समटाइम मनी डिसीजंस मेक करते हैं, समटाइम हास्टी डिसीजंस टेक ऑन करते हैं और डिजाइन एटीट्यूड को मिस कर जाते हैं. अल्टीमेटली दे फेस प्रॉब्लम. बिजनेस मॉडल डिजाइन प्रोसेस क्या है उसको अंडरस्टैंड करेंगे. बहुत सारे लोग कहते हैं इट्स ए लीनियर प्रोसेस. क्या ये वाकई में लीनियर है या नहीं है और किस बिजनेस मॉडल पे हम अपना बिजनेस मॉडल डिजाइन करें. बहुत सारे कैनवस हैं, बहुत सारे डिजाइंस हैं.
सो विच वन प्रेफर? एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है पर्पल मैटर्स का, आपने सुना होगा, उबर आप जानते हैं, नेटफ्लिक्स है, तो हम उनको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो लीविंग दिस ऑल, द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस मॉडल, एक एंटरप्रेन्योर के लिए बिजनेस मॉडल क्यों इम्पोर्टेंट है और कितना इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप देखें। जो भी बिजनेस मॉडल हम डिज़ाइन करते हैं, वो सबसे बड़े एक पहला चैलेंज होता है कि आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपने अपने बिजनेस मॉडल के लिए वो क्या इंग्रेडिएंट्स आपके पास होने चाहिए। जो आपका बिजनेस मॉडल, क्या ये वाकई एक इनोवेटिव बिजनेस मॉडल होगा, क्या ये एक डिस्रप्टिव बिजनेस मॉडल होगा जो पूरी इंडस्ट्री के चेन को जो है वो दोबारा रीडिफाइन करेगा। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो है वंस डिज़ाइन द बिजनेस मॉडल, हम इस चीज़ पर फोकस करें कि क्या 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 हम पे रियलाइज करना चाहते हैं। वो बेसिकली क्या होता है कि जब लोग बिजनेस मॉडल डिज़ाइन करते हैं, वो कहते हैं कि हम इनोवेशन लेके आए हैं तो ये शायद हमारी जो है वो डिसरप्शन हो जाएगी। तो इस दोनों को जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर सर्कल में बहुत सारे लोग मिक्सअप कर जाते हैं, इनोवेशन को एंड डिसरप्शन को। थोड़ा सा क्लियर करते हैं, इनोवेशन जो है वो आपकी कोई भी एक सिंगल वैल्यू एडिशन आप लेके आ जाते हैं, एग्जिस्टिंग वैल्यू चेन में आप कोई चेंज लेके आ जाते हैं। जब हम डिसरप्शन की बात करते हैं तो बहुत सारी जो हमारी जो उस सेक्टर में या इंडस्ट्री में बहुत सारी इनोवेशंस होती हैं। जिस तरह टेकन अ वंडरफुल एग्जांपल ऑफ दिस कि ये जो पर्पल है, पर्पल मैट्रेस, आप मार्केट में जाएं, लेट सपोज किसी को भी अगर एक्सपीरियंस हुआ होगा, मुझे तो हुआ है, जब व्हेन वी गो टू द मार्केट फॉर परचेजिंग ऑफ द मैट्रेस, हम क्या करते हैं, मैट्रेस देखते हैं, कुछ एडवर्टाइज को मद्देनजर रखते हैं, कुछ उनकी फीचर्स को मद्देनजर रखते हैं, हम उस मैट्रेस पे लेट जाते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, अब ये मैट्रेस जो है फाइनल है और वी मेक अ परचेज। लेकिन पर्पल इन 2002, टोनी ब्रॉट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिंगिंग हाई टेक, जो sophisticated technology है, they brought into designing of this mattress soft enough and tough enough आपकी स्पाइनल के लिए कि आप उस पे लेट जाएं। एक तो ये था कि टेक्नोलॉजी को उन्होंने इन्वॉल्व किया, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस हाउ दे ब्रॉट द डिस्ट्रप्शन टू द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसिंग किसी को नहीं दिया कि आप जाएं और पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करें, आप जाएं और यूनाइटेड स्टेट्स में मैन्युफैक्चर करें, दे स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग बाय देमसेल्व्स। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट दे एक्चुअली डिड इज दैट कि वो जो होलसेलर्स हैं एंड रिटेलर्स हैं, उन उस पूरे चैनल को उन्होंने डिस्टर्ब किया, उनसे अवॉइड किया, एंड दे स्टार्ट डायरेक्टली अप्रोचिंग टुवर्ड्स द their target market. How? Through the using of the different apps and this technology, mobile and internet through. What were they actually offering to the customer जिसने इस पूरी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब किया? वो ये था कि आप मैट्रेस ले जाएं, आप जस्ट क्लिक ऑन करें, मैट्रेस सेलेक्ट करें, साइज और सारी चीजें सेलेक्ट करें, वी विल डिलीवर यू द मैट्रेस एट योर डोर स्टेप, यूज इट फॉर 100 नाइट्स, एंड आफ्टर 100 नाइट्स आप इस मैट्रेस को, अगर आपको पसंद नहीं है, जस्ट message us and we will collect that mattress without any the use of that mattress for 100 nights, आपको refund हो जाएगा। So that's redefined this industry. Uber का आप देख लें, टैक्सी हम करते थे यूनाइटेड स्टेट में भी यही था कि ट्रेडिशनल वे, आप टैक्सी को ढूंढें, जाएं, नंबर को सेलेक्ट करें, वेट करें, सब टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड एंड जस्ट क्लिक ऑन एंड देयर इज अ टैक्सी फॉर यू। एयरबीएनबी ने भी ऑलमोस्ट यही काम किया है जो इस इंडस्ट्री को रीडिफाइन कर रहा है। होटल इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट उन्होंने डिस्टर्ब किया यूनाइटेड स्टेट्स में, एंड समहाउ देयर ओवरऑल कैपिटल इज फ्रॉम 10 billion to 25 billion US dollar. The reason is that, and what actually they did is that how they disrupt this industry, not bringing the innovation, but completely disrupt कर रहे हैं उस इंडस्ट्री को, होटल की इंडस्ट्री को। वो कैसे? इफ़ यू आर frequent travel, or आप if you are even not a frequent travel, you want to go move any part of the United States for example, तो आप वहाँ पे जाएं, इनसे they give the house or apartments on rental basis for a particular time period and offer you the almost all of the services through, you can go through their website and just get reserved for that. So they are now redefining this hotel industry and so on. So this is how basically the disruption and redefining of the industry. Relationship to value proposition क्या है? Value proposition is the core for designing the business model. आपने सबसे पहले अपना वैल्यू प्रपोजिशन को वैलिडेट करना है। अगर आप उसको वैलिडेट कर लेते हैं तो आप फिर अपना बिजनेस मॉडल सही तरीके से
डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपने बेसिकली कल इमरान बात कर रहे थे कि आपका जो ये सेंटर है, एक लेफ्ट साइड है, एक आपकी राइट साइड है, जो सेंटर है वो आपकी वैल्यू प्रपोजिशन है। तो ये जो वैल्यू प्रपोजिशन है दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, यू design and validate it before you go into the designing the business model। और क्योंकि आपकी जो अपकमिंग जो सारी बिजनेस मॉडल डिज़ाइन की जो आपकी जो भी आप उसमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे बेस्ड ऑन दैट वैल्यू प्रपोजिशन, और वो उसको वैलिडेट भी करेंगे और उसकी बेसिस पे डिज़ाइन भी करेंगे। So my suggestion is that develop the value proposition first and validate it before going to design the business model। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है एक एंटरप्रेन्योर के लिए? हमारे पास यूनिवर्सिटी, आई एम वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उनका यही होता है कि सर ये बिजनेस मॉडल हम डिज़ाइन करें, व्हाट विल बी, कहाँ से करें, क्या हम बिजनेस प्लान बनाएं, क्या हम कैनवस पे बनाएं, क्या हमारे पास आइडिया हो तब हम इसको डिज़ाइन करना शुरू करें, कहाँ से करें। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट बिजनेस मॉडल डिज़ाइन का वहाँ से स्टार्ट होता है जब आप कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और लोगों की जो अनमेट नीड्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते, वहाँ से आप करते हैं। लेट्स टेक अ वंडरफुल एग्जांपल ऑफ द ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक ने क्या किया? आई थिंक इट्स डूइंग ऑलमोस्ट द सेम द माइक्रो फाइनेंस बैंक्स आर डूइंग, बट ये सोशल एक एक्टिविटी स्टार्ट हुई। कैसे स्टार्ट हुई? दे टारगेटेड दोज पीपल जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस बैंक ने जिनको नेग्लेक्ट किया, रिजेक्ट किया, और हालांकि वो एक पोटेंशियल कस्टमर्स थे उन बैंक्स के लिए। क्यों किया? बिकॉज दे डिड नॉट हैव द कोलेटरल टू ऑफर टू दिस माइक्रो फाइनेंस बैंक। And what Grameen Bank did is that they established the relation on the basis of trust and faith। और दूसरी the another base was that that relation was if the person who took the loan from this Grameen Bank अगर वो पे आउट नहीं करता और उसकी डेथ हो जाती है तो वो फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करेंगे उसको पे आउट करने के लिए। सो दिस वाज द अनमेट नीड। एंड आप देखें ग्रामीण बैंक ने क्या मार्केट में अचीव किया है, उनकी आप ओवरऑल एक्टिविटीज देखे हैं, रिकग्नाइज एट इंटरनेशनल लेवल एंड सेटिस्फाई द नीड ऑफ दैट इन बांग्लादेश एंड नाउ इन द डिफरेंट पार्ट्स। एक फिर क्या होता है कि आपके पास कोई ऐसी रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में आप देखें बहुत सारी पेटेंट्स और बहुत सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, रिसर्च का वर्क होता है। तो आपके पास अगर इसका कोई ऐसा प्रोडक्ट है तो आप उसकी एडवांटेज लेना चाहते हैं तो दैट वुड बी द ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दिस। और समटाइम आप एग्जिस्टिंग मार्केट को चेंज करना चाहते हैं, एग्जांपल इज ऊपर इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल। और समटाइम आप न्यू मार्केट डिफाइन जो है कर लेते हैं अपनी बिजनेस मॉडल डिजाइन के थ्रू। चैलेंजेस क्या होते हैं? सबसे पहला चैलेंज ये होता है कि आपका बिजनेस मॉडल कैसे आप एक डिस्कवर कर सकते हैं बिजनेस मॉडल को, आप कैसे एक बिजनेस मॉडल को बना सकते हैं, डिफरेंट पार्ट्स को आप कनेक्ट कैसे कर सकते हैं जो आपकी नीड को, जो आप वैल्यू प्रपोजिशन जो आपने वैलिडेट किया हुआ है उसकी रिक्वायरमेंट्स को कैसे फिलफिल कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि एक ये होता है कि आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपके पास आइडिया है, आपके पास कैपेसिटी नहीं है, तो आपने उस बिजनेस मॉडल जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं उस वक्त आपको पता चल रहा होता है कि वेयर आई एम एक्चुअली लेकिंग। क्या ये अजम्पशन बेसिस हैं, क्या ये ईगो बेसिस एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, क्या ये इनफैक्ट वो चीज़ें हैं जो हमारे पास वाकई में हैं। और आपका बिजनेस मॉडल का सबसे बड़ा जो चैलेंज है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट कि क्या ये बिजनेस मॉडल अमेंड हो सकता है, क्या इस बिजनेस मॉडल को आप रीडिज़ाइन कर सकते हैं, क्या इसमें आप कंटिन्यूस इनोवेशन लेके आ सकते हैं, क्या इसमें कंटिन्यूस वैल्यू एडिशन हो सकती है, और अगर हो सकती है कि क्या अगेन आपकी जो बेसिक आपकी इस रेवेन्यू साइड है, आपका कस्टमर साइड है, आपके पार्टनर्स हैं, आपका क्या वो उसमें पॉसिबल है आपके बिजनेस मॉडल में। तो ये आपका एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है और उस चैलेंज को हम कैसे एड्रेस करें। that's the another thing is the design attitude कि आपने डिज़ाइन एटीट्यूड को अपनाया, आप क्या उसको सस्टेन कर सकते हैं, क्या आप उसको फर्दर क्रिएट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, क्योंकि हमने मोस्टली आपको पता है कि एंटरप्रेन्योर जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो मोस्टली कहते हैं कि ये जो हमारे पास
जो बिजनेस है उसका प्राइम पर्पस वो प्रॉब्लम को तो देख लेते हैं, लेकिन इन लॉन्ग रन उनका जो टारगेट होता है जस्ट टू अर्न द मनी, एंड ऑफ कोर्स दैट्स अ की एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ दैट। लेकिन हमारी क्या डिसीजन, क्या वो डिसीजन बेस्ड ऑन दिस मनी डिसीजंस तो नहीं होते हो जाती, क्या हमारे जो डिसीजंस हैं वो क्या इशू बेस्ड डिसीजंस तो नहीं हो जाती, क्या डिज़ाइन एटीट्यूड हमारे पास है, क्या हम उस जो हमारे पास बिजनेस मॉडल हम डिज़ाइन कर रहे हैं क्या उसको हम इम्प्रूव, कंटिन्यूस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंटिन्यूस हम उसको इम्प्रूव और कंटिन्यूस हम उसको चैलेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम डिज़ाइन एटीट्यूड को सस्टेन नहीं कर पाते जब बिजनेस डिज़ाइन करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें और वो प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू हम बिजनेस मॉडल प्रोसेस डिज़ाइन करें और उसको वैलिडेट करें। इसके सिंपल ये 6-7 स्टेप्स हैं। आपके पास वैल्यू प्रपोजिशन आ गया है, आपने उसको वैलिडेट कर लिया है, इट्स सपोज योर नॉवल बिजनेस आइडिया, वहाँ से आपने स्टार्ट किया है। बिजनेस मॉडल्स में आपकी असम्पशंस क्या है इन टर्म्स ऑफ दी रेवेन्यूज है, इन टर्म्स ऑफ दी आपकी कॉस्ट स्ट्रक्चर है और सारी चीज़ें, क्या आपने उन कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को, उन रेवेन्यू साइड को, असम्पशन को टेस्ट किया है, हाइपोथेटिकल है आपका, असम्पशन बेस्ड है, क्या आपने वाकई में उसको वैलिडेट किया है, एक्चुअली आपने ये सारे प्रोसेस से गुजरे हैं, क्या फिर आपने एवेल्यूएट किया है, रिस्क फैक्टर क्या है इस पूरे प्रोसेस में, और फिर क्या आपने उसको वैलिडेट किया है उस प्रोसेस में, वो रिस्क फैक्टर्स थे जो इश्यूज थे क्या आपने उसको ख़त्म किया। अगर नहीं किया तो इट्स नॉट ए लीनियर प्रोसेस, दोबारा आप चेंज करेंगे एंड दोबारा आप बिजनेस मॉडल अजम्पशंस पे जाएंगे, अगेन आप उसको करेक्ट करेंगे। अगर आप नहीं कर सकते तो यू जस्ट विथड्रॉ फ्रॉम दिस आइडिया, अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप रेवेन्यू फोरकास्ट है, फिर आपकी मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज है जिसको आप सर इख्तियार काइंडली ये वाली जो स्लाइड है इसको थोड़ा जूम कर दें ताकि लोग इसको देख सकें ज़्यादा बेटर। इस स्लाइड को मैं ये वाली बिजनेस मॉडल प्रोसेस को। जी जी, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये दिस वन आई थिंक इज फाइन नाउ। तो ये सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है दैट्स अ वैल्यू प्रपोजिशन, जिस तरह आपने इसको वैलिडेट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से आपके स्टार्टिंग पॉइंट्स में सर आपका थोड़ा जो सा और जूम कर दें इसको प्लीज, और जूम करके आप स्क्रॉल कर दें ताकि लोग इसको एक दफा देख पाए, पढ़ समझ सकें। सॉरी थैंक यू सर। दिस इज द बेसिकली द बिजनेस मॉडल। Yes, एक sir. प्रोसेस है जो हमारे पास। सबसे पहले आप बिजनेस मॉडल अजम्पशंस पे जो आप थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं। बिजनेस मॉडल अजम्पशंस आपकी क्या है, रेवेन्यू साइड पे आपके अजम्पशंस क्या है, आपकी कॉस्ट साइड पे अजम्पशंस क्या है, और आपकी बाकी अजम्पशंस जो वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग स्लाइड्स इन मोर डिटेल। और फिर क्या आप उनको अजम्पशंस को आपने टेस्ट किया है, क्या वो पॉसिबल है कि आप टेस्ट कर सकते हैं या जस्ट अजम्पशन बेस्ड ही हैं आपके उस प्रोसेस में, क्या आपने उसको फिर एवेल्यूएट किया है कि अगर वो अजम्पशंस जो हमारे थे हम उसको वैलिडेट कर सके हैं या नहीं कर सके, अगर कर सके हैं तो क्या उसमें रिस्क फैक्टर्स कोई इन्वॉल्व है या नहीं है। अगर इस प्रोसेस से ये पास हो जाता है तो वी कम टू दी वैलिडेट स्टेज कि वो वैलिडेट हो गया है, नाउ वी कैन स्टार्ट दिस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल डिजाइन। नहीं कर सकते तो अगेन वी हैव वन ऑप्शन, ईदर टू क्विट फ्रॉम दिस आइडिया या फिर हम जो है इसको दोबारा बिजनेस मॉडल अजम्पशंस पे जाएं। हो सकता है मोस्टली प्रॉब्लम न्यू स्टार्टअप्स में ये होता है, वी मिस दिस अजम्पशन एक्यूरेटली, जहाँ पे हम जितना मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं कि हम सपोज फॉर डिमांड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम कॉस्ट स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा करेक्ट कर सकते हैं, हम ऐसा कहें कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे है। अगर ये वैलिडेट हो जाता है देन कम टू रेवेन्यू फोरकास्ट है, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड सेल्स है। दिस वी विल कवर लेटर ऑन इन दिस अपकमिंग स्लाइड्स। सो नाउ सबसे पहले व्हाट्स अ बिजनेस मॉडल। मेरे ख्याल से कल इमरान ने इसको डिफाइन किया है, लेकिन एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। कोई कहते हैं कि कोई 855 जो है वो बिजनेस मॉडल्स हैं, कोई कह रहा है कि 112 बिजनेस मॉडल्स हैं। एलेक्जेंडर ऑस्ट्रोवर्ड ने जो डिफाइन किया है अपनी बुक में कि देयर आर दी 5 बिजनेस मॉडल्स, ये बेस्ट डेफिनेशन है। जो सारी आर्टिकल्स को अगर हम सम अप करें और सबको देखें तो एलेक्जेंडर की डेफिनेशन और उसकी टीम की 2005 में जो दी थी, दैट्स अ वंडरफुल that a business model describes the value an organization offers to its customers and illustrates the capabilities and resources required to create market, number one, deliver this value and to generate profitable sustainable revenue streams.
आपको पर्पल मैट्रेस का आप देखें कि कैसे उन्होंने मार्केट क्रिएट की। एग्जिस्टिंग मार्केट थी मैट्रेस की, लेकिन प्रॉब्लम क्या था दैट वाज टू गो इन दी शॉप, नंबर वन। उसके बाद कोई जैसे हमारे पास मास्टर फोम की है, वो गारंटी आप उनको देखें, लाइफ टाइम गारंटी है, क्या वो 100 नाइट्स की गारंटी दे रहे हैं। तो दिस इज हाउ दे बेसिकली चेंज दे ब्रॉट इन। तो वैल्यू डिलीवर करना, उसको सस्टेन करना, उसको क्रिएट करना, ये एक हमारे लिए बड़ा चैलेंज होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। जब भी हम बिजनेस मॉडल को डिजाइन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम कस्टमर्स को कैसे एक्वायर करेंगे। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखें, ईगोइज्म हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस। यू लव योर बिजनेस, यू हैव द पैशन। Seems like we have a connectivity issue. सर आपको आवाज आ रही है मेरी? Will there is a connectivity issue. इख्तियार साहब हमें सक्खर से ज्वाइन कर रहे हैं, तो maybe there is a connectivity issue. Let me contact them. टीम काइंडली कांटेक्ट करें इख्तियार साहब से. Lost the connection. हाँ, connectivity disconnect. कोई नहीं वापस आता है. हाँ, अस्सलामुअलैकुम सर. वाज इमरान। जी सर. सर Okay, it's fine. we're connected sir. Okay. So, sorry for disturbance, dear audience. Let's start from the activity number 1. जब भी हम बिजनेस मॉडल डिजाइन करने जा रहे हैं, तो पहला काम क्या होगा? जब बिजनेस आइडिया हमारे पास आ गया है, जब हमारे पास वैल्यू प्रपोजिशन है, तो हम क्या करने जा रहे हैं इस फर्स्ट एक्टिविटी में डिजाइन करने के लिए कि आपके पास कस्टमर कैसे आएगा, आप अपने कस्टमर को कैसे अक्वायर कर सकते हैं, और उस अक्वायर करने की कॉस्ट आपके पास क्या है और कितनी कॉस्ट आ सकती है आप अपने कस्टमर को। यू हैव टू एड्रेस दिस क्वेश्चन नंबर 1। जब आपके पास एक पहला कस्टमर आया है, तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके साथ अपने रिलेशनशिप को कैसे डिफरेंट चैनल्स के साथ स्ट्रांग बना सकते हैं कि कस्टमर आपके पास, जिसको हम कहते हैं डॉक्टर शाहिद कुरैशी इन IB कराची से, तो जाने ना पाए। आपके पास कस्टमर आ गया है तो वो जाने ना पाए आपसे, आपके बिजनेस से, और आपके साथ वो एक लॉयल कस्टमर बन जाए। हाउ डू यू चार्ज योर कस्टमर्स? आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है? मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपने पहले से डिस्कस कर ली हैं। जस्ट टू कीप दीज क्वेश्चंस इन माइंड कि जिस तरह आपको एक ईज रहे डिजाइन करने के लिए। आप अपने कस्टमर्स को चार्ज कितना करेंगे, आपकी एसेट्स आपके पास हैं, आपका उसके ऊपर कंट्रोल कितना है, ये एक बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है। बिकॉज मोस्टली जब हम बिजनेस मॉडल डिजाइन करते हैं, हम पार्टनर्स पे वी फोकस ऑन दी पार्टनर्स। जिस तरह आप एक करीम की बात करें हमारे पास, तो करीम के साथ एक ये है कि हम उनको एक they have to establish a wonderful relationship with these taxi drivers. तो ये फिर आपको देखना है कि आपके पास एसेट्स इधर फ्रॉम योर ओन रिसोर्सेज या फिर आप कंट्रोल्ड हैं, क्या आपकी विद इन एडमिन सॉर्ट का एसेट्स हैं दैट्स यू आर गोइंग टू कंट्रोल, वो आपके पास कंट्रोल है, या एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं वो आपके कंट्रोल में है, वो कितने हैं, और आपके की पार्टनर्स कौन से हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। की एक्टिविटीज़ आप कौन से जो परफॉर्म करने जा रहे हैं जिसके थ्रू आप अपनी वैल्यू प्रपोजिशन को डिलीवर करेंगे अपने कस्टमर को। फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी वेरिएशन से आपकी पूरी जो आपका रेवेन्यू मॉडल है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। और आपके पास
जो आपका रेवेन्यू फोरकास्ट है, क्या आपका रेवेन्यू फोरकास्ट और आपके कास्ट स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आ रहा है, और वेदर दी रेवेन्यू फोरकास्ट आपके अजम्पशन बेस्ड हैं, क्या आपने उसको वैलिडेट किया है या नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट वांट टू शो दिस फोटो दिस स्लाइड, जस्ट वांट टू टेल यू कि कौन सा बिजनेस मॉडल आप सेलेक्ट करें अपने बिजनेस मॉडल का डिज़ाइन बनाने के लिए। बहुत सारे मॉडल्स हैं, अलेक्जेंडर ऑस्टरवर्ड की मॉडल को प्रेफर करेंगे। प्रेफर टूल मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा एक बेहतरीन टूल है, जिसको 2005 में इन्होंने इसको स्टार्ट किया, इस पर डिस्कशन की, कंपैरेटिव एनालिसिस किया। दिस बिजनेस मॉडल स्टिल इज अ वंडरफुल बिजनेस मॉडल कैनवस, जिसको बिजनेस मॉडल कैनवस कहा जाता है। इट्स अ वंडरफुल टूल टू डिज़ाइन बिजनेस मॉडल। ये एक शेयर्ड लैंग्वेज है जिसको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली ये जो शेयर्ड लैंग्वेज है, ये फोकस करता है 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स पर। कल थोड़ी सी इमरान ने इस पर डिस्कशन किया है, उस पर हम थोड़ा सा एक ब्रीफ रोशनी डालेंगे कि कैसे बेसिकली हम उसको डिज़ाइन करेंगे। इमरान ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि 2 एज सीधे नज़र आ रहे हैं वर्टिकल में, और एक एज जो है वो हॉरिजॉन्टल है इसमें। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आपको वही चीज़ नज़र आ रही होगी कि फर्स्ट जो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे पास जब हम अपनी बिजनेस मॉडल की डिज़ाइन करते हैं, वो हमारा कस्टमर है। कस्टमर, दैट्स द राइट साइड ऑफ दिस बिजनेस मॉडल कैनवस, और लेफ्ट साइड पे हमारे पर की पार्टनर्स हैं, कॉस्ट स्ट्रक्चर है, और हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं और रिसोर्सेज कौन सी रिक्वायर्ड हैं। लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है, आपने क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, आपने उस प्रॉब्लम के लिए किस टारगेट मार्केट की आपने सिलेक्शन की है, इसको एड्रेस करना और इसको डिफाइन करना इन अ पैराग्राफ शेप, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उस जिस कस्टमर को आप सर्व करने जा रहे हैं, उसकी किस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें और कैसे कर रहे हैं, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिस वैल्यू प्रोपोजिशन कम्स इन द सेंटर ऑफ दिस। मेरे ख्याल से ये इट्स अ कोर ऑफ दिस बिजनेस मॉडल कि आप अपनी कस्टमर को क्या ऑफर करने जा रहे हैं जो आपको डिफरेंशिएट करता है उस इंडस्ट्री में, या उस जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो आप कैसे करने जा रहे हैं, और उसकी जो की जो जो आप प्रोपोजिशन वैल्यू प्रोपोजिशन डिलीवर करें, क्या वो आप उसको डिलीवर कर सकते हैं, क्या आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या आपका कस्टमर फिर आपको एक्नॉलेज कर सकता है कि इनफैक्ट यू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट द कस्टमर इज एक्चुअली फेसिंग इन। फिर इस वैल्यू प्रोपोजिशन को आप कैसे डिलीवर कर सकते हैं थ्रू द सेल्स, थ्रू द कम्युनिकेशन एंड थ्रू द लॉजिस्टिक। फिर इन कम्युनिकेशन में कौन सा चैनल आप यूज़ करना चाहते हैं, उसकी कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, कि कैन यू एक्चुअली डू इट और नॉट, क्या ये आपके लिए पॉसिबल है करना, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जिस तरह आप आजकल देखें फेसबुक पे देखें, मैंने रिसेंटली एक बड़ा मेंटीज के साथ बड़ा एक किस्म का एक्सपीरियंस किया है, जिसमें मैं आपको वर्ड में कैसे बताऊं, लेकिन बट इट्स अ वेरी बैड एक्सपीरियंस टू मी इज दैट जो उन्होंने फोटोग्राफ्स दिखाए फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट पे, वो तो कहीं से उन्होंने बारो किया था। वो जब उन्होंने रियल प्रोडक्ट डिलीवर किया मुझे, एक प्रोडक्ट तो वो था जिन्होंने उन्होंने पाकिस्तान में यहाँ पे असेंबल किया और डिज़ाइन किया और उसको यहाँ से कहीं से सिलवाया और मुझे वो भेज दिया। दूसरा एक एक्सपीरियंस मुझे जो हुआ उनके साथ, जो दोनों मैंने एक साथ ऑर्डर किए थे, शॉर्ट्स मैंने मंगवाया उनके साथ, और उन्होंने क्या किया, मुझे लुंडे के शॉर्ट्स भेज दिए। एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी के व्हाट एक्चुअली द मेंटीज हैड इट। अब आप यहाँ पे देखें, कस्टमर उनका देखें, परफेक्ट उन्होंने कस्टमर की चॉइस की, लेकिन कस्टमर के लिए वैल्यू प्रोपोजिशन आप देखें क्या उसकी नीड को उन्होंने फुलफिल किया, और किस किस्म का कस्टमर था, क्या आपने किया उसके साथ। और लेकिन जो चैनल उन्होंने यूज़ किया दैट वाज अ परफेक्ट वन। टीसीएस से वो आया मेरे पास, तो मैं समझा कि शायद टीसीएस भी है, एक नया ब्रांड भी आ गया है मार्केट में, तो हो सकता है दे मे हैव डिलीवर अ वंडरफुल प्रोडक्ट, बट अनफॉर्चुनेटली ये वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं हो पाई। और आप देखें, अब कस्टमर रिलेशनशिप, मैंने उनको एक मैसेज किया एंड ओपनली मैसेज किया, मैंने कहा कि दिस अ वर्स्ट एक्सपीरियंस विद यू। तो उन्होंने इमीडिएटली मुझे मैसेज प्राइवेट नंबर पे, अपने पर्सनल नंबर पे किया और मुझे कहा कि सर आप जो है वो यहाँ पे अगर आपको कोई कम्युनिकेशन करनी है तो यहाँ पे करें, मेरे उस पेज पे आप वहाँ पे ना करें। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि वो जो कस्टमर के साथ उन्होंने एक टच करना था, अपने आप को बाउंड करना था, और एक जो आप कड़ी के साथ चेन बनाना था, पर्सनल रिलेशनशिप बनाना था, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना था, वो मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेटली दे हैव नॉट
तो ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स बिजनेस जब प्लान करते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ में, आइडिया तो आ जाते हैं रिसर्च से, पेन आइडेंटिफिकेशन से, लेकिन अल्टीमेटली दे कांट डिलीवर दिस। और चैनल को आजकल के दिस फास्ट टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक बहुत इम्प्रूव हो गया है, तो वो उसको कवर कर लेते हैं, वैल्यू प्रोपोजिशन और रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाते। रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, अब बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स हैं, कहीं पे डबल साइडेड बिजनेस मॉडल हो रहा होता है, उस पर हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। सिंगल साइडेड बिजनेस मॉडल है, तो आपके पास जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। सपोज अगर मैं आपसे बात करूं कि ऊपर को और करीम को कहाँ से आते हैं, राइट से आते हैं ऑफकोर्स, इस तरह फिर नेटफ्लिक्स है, उनको कहाँ से आ रहे होते हैं, बहुत सारी एक है, उस पर फोकस करेंगे कि आप अपनी पास जो आपके पास रेवेन्यूज़ है वो कहाँ पे आ रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी की हम बात करें, मैं सकर आईबी यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, तो सकर आईबी यूनिवर्सिटी में रेवेन्यूज़ कहाँ से आते हैं। ऑफकोर्स नंबर 1 आंसर इज द स्टूडेंट्स, number 2 may be the consultancy services that we are providing to some other organizations, उसको स्टूडेंट्स असम्पशन बेस पे करते हैं और उस असम्पशन बेस पे पीछे होमवर्क नहीं हुआ होता। तो अल्टीमेटली ये बिजनेस मॉडल का आप देखें कि एक डॉट्स और ये ब्लॉक्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं वो हम नहीं कर पाते। कनेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन वो असम्पशंस बेस होते हैं और उनका इंफॉर्मेशन जो सोर्स होता है वो सही नहीं होता। ये देखें रेवेन्यू स्ट्रीम्स, बहुत सारी ऐसी बिजनेस है, वो डायरेक्ट होटल में देखें, डायरेक्ट वो वहाँ पे सर्विस और वो जो वर्ड्स ओवर दे सेल इन। लेकिन आप एचपी का देखें रेवेन्यू मॉडल, उनका आप मैं जब व्हेन आई वाज इन बीबीए मैंने प्रिंटर परचेज किया, वो खराब हो गया, तो उन्होंने कहा कि सर ये इसको रिपेयर नहीं करवाएं आप, वैसे ही आप कार्टेज ले रहे हैं तो आप नया ले लें। मुझे उस वक्त पता नहीं था, मैंने कहा क्यों नया ले लूँ, कह रहे कि सर इतने का तो आपका कार्टेज है वो 2500 का, तो आप ये तो नया भी जो है वो 2800 का मिलता है, इसको छोड़ दें, आप इसको बनवाएंगे फिर ये करेंगे तो आपका डबल खर्चा आ जाएगा। तो दिस इज हाउ द एचपी रेवेन्यू मॉडल के 80% ऑफ कम्स फ्रॉम द सेल ऑफ दीज कार्टेजेस। सो वी नीड टू बी वेरी मच क्लियर। अच्छा, दिस इज वी कवर द राइट साइड ऑफ दिस बिजनेस मॉडल जिसको वैल्यू प्रोपोजिशन सेपरेट कर रहा है। एंड नाउ वी कम्स टू द की रिसोर्सेज। हमें की रिसोर्सेज, मिनिमम क्या रिसोर्सेज हमारे लिए असेंशियल हैं इस काम को करने के लिए, ये नहीं है। मिनिमम क्या ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास खुद के पास होने चाहिए, जिस पे हमें कंट्रोल होना चाहिए। मोस्टली लोग ये कहते हैं की रिसोर्सेज, लेट्स सपोज आपके पास ऐप होना चाहिए फॉर एग्जांपल, कि क्या आप उसको ऐप को कंट्रोल करते हैं, क्या आपकी उस ऐप पे आपका कमांड है, क्या वो आप वाकई में उसको हैंडल कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपने की रिसोर्सेज जो है बारोड किया अपने पार्टनर से, कल आपको एक पार्टनर क्विट कर जाता है, कैन यू परफॉर्म दिस वन, बिकॉज मेजर शेयर एसेट में उनका था। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। वंस आई स्टार्टेड माई इंस्टीट्यूट इन 2006 एंड 7 में, तो वहाँ पे आई हैड अ वंडरफुल की पार्टनर एट दैट टाइम, ही वाज माय को-फाउंडर। 2006-7 में वी स्टार्टेड एट दिस इंस्टीट्यूट एंड बिल्डिंग का एक बड़ा इशू हमारे पास था उस वक्त, एंड ही हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ दैट बिल्डिंग एंड वंस ही सेड दैट आई वांट टू क्विट दिस बिजनेस। और उस वक्त जब वो क्विट कर रहे थे तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं क्योंकि बिकॉज एवरीथिंग वी इन्वेस्टेड इन दैट बिजनेस, जो भी हमारे पास पैसे थे, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि इधर आई गेट दैट बिल्डिंग टू परचेज इट, गेट ऑन रेंट एंड पे द एडवांस मनी एंड सो ऑन, देन पे मंथली रेंट, एंड सो अल्टीमेटली आई जस्ट क्लोज अप दैट बिजनेस इन 2009 and 10, though we were across the break even and we were earning at that time। तो ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना बहुत ही की एक्टिविटीज़ आप मिनिमम कौन से परफॉर्म कर सकते हैं जो आपके बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट हैं in order to connect these dots to deliver your the value proposition to your customer। की पार्टनर्स, करीम के लिए की पार्टनर्स जो है वो ड्राइवर्स हैं। आपको की पार्टनर्स सेलेक्ट कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। की पार्टनर्स कब सेलेक्ट करें, जब आप समझते हैं कि ये की पार्टनर आपको जो आप वैल्यू डिलीवर करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करना चाहते हैं, क्या ये पार्टनर आपको मार्केट लीडर बना देगा, क्या ये पार्टनर के होने की वजह से क्या आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी। फॉर एग्जांपल
करीम में आप देखें कि पार्टनर्स ड्राइवर्स हैं, क्या ड्राइवर्स की उन ड्राइवर्स की वजह से करीम के सर्विस इंप्रूव होता है? क्या उन ड्राइवर्स की गाड़ियों की वजह से करीम के जो डिफरेंट सर्विसेज हैं कि कारपोरेट है, इकोनॉमिकल है, और बहुत सारी वो ऑफर करते हैं, क्या उनकी सेल बढ़ रही है? क्या उनका टारगेट मार्केट को वो सर्व कर पा रहे हैं? क्या वो वैल्यू प्रोपोजिशन डिलीवर कर पा रहे हैं? उनसे नहीं। तो आपकी सिलेक्शन के लिए दो क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। क्या वो की पार्टनर इतना ज़रूरी है आपके लिए जिसकी वजह से आप एक यूनिक और डिफरेंशिएट पोजीशन मार्केट में क्रिएट कर सकते हैं? क्या वो आपकी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं? तो यू मस्ट सेलेक्ट योर की पार्टनर फ्रॉम द बेस्ट ऑफ दिस। कॉस्ट स्ट्रक्चर को आप कैसे कर सकते हैं? कॉस्ट स्ट्रक्चर आपकी सारी बाकी जो एक्टिविटीज हैं जो आपकी बिजनेस मॉडल में जो वी डिस्कस सो फार, वो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं कि उन सारी एक्टिविटीज पे आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, आपकी फिक्स कॉस्ट आपके पास कितनी आ रही है। क्योंकि ये आपको जब मैच करेंगे अपनी रेवेन्यू से कि क्या आपकी रेवेन्यू को आपकी कॉस्ट में डिफरेंशिएशन है, क्या ये इतना डिफरेंशिएशन है जो आपकी सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, और फर्दर आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कंटिन्यूस बिजनेस मॉडल इनोवेशन हो सकेगी या नहीं कर हो सकेगी। तो इनको एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको दिस इज बेसिकली द बिजनेस मॉडल जो Alexander Osterwald and his team given the 5 researchers. So this becomes the business model canvas जो कल आपने डिस्कस किया है। Now let's come in summary of this business model canvas। अगर आप इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिस तरह आपके लिए थोड़ा सा हो कि किन क्वेश्चंस को आपने मिनिमम एड्रेस करना है once you are going to design this business model। let's start first from the customer segments for whom are we। सॉरी सर, कार इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको एड्रेस कर ले। जी प्लीज। ये अली रहमान पूछ रहे हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन की रिसोर्सेज एंड की एक्टिविटीज। ई रिसोर्सेज एंड की एक्टिविटीज। देखिए, ई रिसोर्सेज वो तो आप एक जो है ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि आपकी जो की एक्टिविटीज हैं ये वो बताता है कि आप जो वैल्यू प्रोपोजिशन डिलीवर करने जा रहे हैं उसके लिए मिनिमम आपकी एक्टिविटीज को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखिए, रिसोर्सेज जो है वो तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे आपके पूरे उसको कि आप कौन सा चैनल यूज करना चाह रहे हैं या आपके पास क्या मिनिमम एसेट्स होने चाहिए एटलीस्ट उस की एक्टिविटीज को डिलीवर करने के लिए। तो रिसोर्सेज में भी मे बी द एसेट्स हो सकता है, या मे बी कोई कम्युनिकेशन वे हो सकता है, या कोई ऐसा रिसोर्सेज कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आपको कॉम्प्लीमेंट करे, आपको सपोर्ट करे आपकी उस वैल्यू प्रोपोजिशन को डिलीवर करने के लिए। लेकिन की एक्टिविटीज देखें, वो रिसोर्सेज हो सकता है कि आपकी की एक्टिविटीज में लेट सपोज मैं करता हूँ कि इंटरनेट जो है, मैं ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ या सेशन डिलीवर कर रहा हूँ, मेरे लिए जो की एक्टिविटीज क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल, इंटरनेट का होना तो बहुत ज़रूरी है, ये मेरा एक रिसोर्स है जिसके थ्रू मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। लेकिन की एक्टिविटीज तो हो सकता है मेरा सेशन हो, क्या हो सकता है कि ये जो मैं डिलीवरी आपके साथ अभी कर रहा हूँ ये मेरे पास हो। तो रिसोर्सेज बेसिकली आपकी जो है वो उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि आप कौन से रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, जिनकी कास्ट का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, और वो आप के रिसोर्सेज क्या आप उसको कर सकते हैं, आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है। तो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन दी की एक्टिविटीज और रिसोर्स। की एक्टिविटीज आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन को और आपकी बाकी जो आप परफॉर्म कर रहे हैं अपनी कस्टमर को डिलीवर करने के लिए वो उसको कर रहा होता है। बाकी रिसोर्सेज तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करें। सर, अगर मुझे इजाजत दें थोड़ा सा मैं आप ऐड ऐड कर करूं। सकते हैं। जी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। मैं एक्चुअली आपने जो बात की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन शायद बच्चों को समझ नहीं आ रही है, और उसके लिए अगर मैं बहुत सादा अल्फाज कोई ढूंढ के कोशिश करूं तो मैं इसकी मिसाल देता हूं कि की रिसोर्सेज इज फैक्ट्री। कि आपका बिजनेस जो भी है, आपका बिजनेस मॉडल हो सकता है एक डिजिटली बिजनेस हो, तो आपका जो लैपटॉप है ना, वही आपकी फैक्ट्री, जिस पे बैठ के आप कोडिंग करते हैं, वही आपकी फैक्ट्री है। और हो सकता है आप लेट से प्लास्टिक बैग बनाते हैं या कोई प्लास्टिक की कोई चीज़ बनाते हैं, तो एक छोटी सी मशीन है जिस पे बैठ के आप वो चीज़ बनाते हैं, तो वही आपकी फैक्ट्री है। फैक्ट्री डजेंट मीन कि जी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी और वही फैक्ट्री है। तो वट एवर इज योर वर्क स्टेशन, वो फैक्ट्री है। और उसके ऊपर जो जो आप काम करेंगे, जो एक्टिविटीज करेंगे ताकि वो प्रोडक्ट बन जाए। जैसे मैं प्लेट्स बनाता हूँ, तो मेरे पास एक छोटी सी मशीन है जिसमें प्लेट्स बनती हैं, तो वही फैक्ट्री है मेरी, वो की रिसोर्सेज है। और उसके ऊपर जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है, मैं ये करूंगा, इसके अंदर मटेरियल डालूंगा, मशीन को ऑन करूंगा, वो हीट अप होगी, फिर उसके अंदर मटेरियल डालेंगे,
ये, और इतने टाइम के लिए उसको प्रेशर में रखेंगे तो प्लेट बन के निकल आएगी। दिस इज की एक्टिविटी, मैं इस तरह से समझाऊँ, और मैं शायद आम आदमी और एक फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर इससे बेहतर समझ सकता है कि फैक्ट्री और उस फैक्ट्रीज की रिसोर्सेज और उसके अंदर होने वाला सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जिससे वो प्रोडक्ट बन जाए, दैट इज की एक्टिविटी। Perfect. Perfect, and thank you very much. Okay, सर the customer segments. I think we will cover this. हम किस segments को हम cover करने जा रहे हैं. We have to answer these questions like for whom are we creating value. किसकी पेन को हम एड्रेस करने जा रहे हैं, उसकी किस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, वो कौन है और वो किस सेगमेंट में है, जो हम जनरली देखते हैं कि मेल है, फीमेल है एंड सो ऑन, उसकी परचेसिंग पावर और सारी चीज़. Once we identify this, उसको हम क्या डिलीवर कर रहे हैं, व्हाट वैल्यू टू बी डिलीवर टू द कस्टमर, हम उसको क्या वैल्यू देना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल रोलेक्स है, एक ब्रांड है. फॉर एग्जांपल हम करीम की बात करें, वो एक चीप है, फास्ट है. आप जब भी जस्ट क्लिक अवे आप मोबाइल उठाएं, ऐप पे जाएं और बटन प्रेस करें और आपके पास वो होगी. तो वो आप अपनी कस्टमर को कैसे करें, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, वो क्या हो सकती है आपके पास. देन कम्स टू दी चैनल्स, कौन सी चैनल, थ्रू विच चैनल्स टू अवर कस्टमर्स वांट टू बी रीच्ड, आप उनको कैसे पहुंचेंगे. थ्रू आप किसी ऐसे कह सकते हैं कि क्या आप उनको उनके पास पर्सनल जाएंगे, पर्सनल सेलिंग के थ्रू जाएंगे, आप उनसे पर्सनल मिलेंगे, क्या आप डोर टू डोर जाएंगे, क्या आप कोई मीडियम यूज़ करना चाहते हैं, वो कम्युनिकेशन मीडियम क्या है, क्या आप कोई लॉजिस्टिक इसमें यूज़ करना चाहते हैं, वो कोरियर सर्विस है. फॉर एग्जांपल जिस तरह हम फेसबुक पे जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं मोस्टली प्रोडक्ट्स की, वो उनके अपने कस्टमर्स के साथ मीट होते हैं, जब उनको प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं तो वो थ्रू TCS या फिर ल्यूपर्ड्स है और बहुत सारे वो चैनल्स हैं, वो आप रख रहे हैं. कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना वो एक बड़ा की और इम्पोर्टेंट है. हाउ डू वी गेट कीप एंड ग्रो कस्टमर्स. हम एक कस्टमर वो है जो आपके पास आ गया है, आप उसको रिटेन कैसे कर सकते हैं, और मे बी थ्रू दी दिस दी somehow कस्टमर, एक कस्टमर आपने डिलीवर किया, वो सेटिस्फाई हुआ, उसने फर्दर आपकी वर्ड ऑफ माउथ आ गया, आपके प्रोडक्ट के बारे में बताया, उसको डिलीवर किया. आपके जो कस्टमर है, इफ़ ही इज़ फेसिंग दी प्रॉब्लम, आप उसकी प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करते हैं, और आप उसकी वो जो इशू है वो उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरा केस है, मैंने आपको मेंडीज का एग्जांपल बताया कि वो कस्टमर के साथ एक तो ना फ्यूचर में सेल होगी उनकी, एटलीस्ट मैं तो नहीं करूँगा, अगर मैं किसी और इमरान को भी कहूँगा तो आप यहाँ से परचेस ना करें, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और रिलेशनशिप बनाने में नहीं सके. नाउ कम्स टू द रेवेन्यू स्ट्रीम्स. फॉर व्हाट वैल्यू आर आवर कस्टमर रियली विलिंग टू पे. जो आप यहाँ पे बिजनेस मॉडल डिज़ाइन जब हम कर रहे होते हैं, जो हमने प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारे पास एंड प्लस दी रेवेन्यू, जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सोल रेवेन्यू स्ट्रीम्स हमारे पास क्या आ सकते हैं, कि क्या ये वाकई में वही पे आउट जो हमारे कस्टमर है कर रहे हैं हमें, जो उनकी पेन को सॉल्व कर रहा है, क्या उसकी वैल्यू और रेवेन्यू स्ट्रीम्स में वो डिफरेंशिएशन क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट. और क्या हमारा जो रेवेन्यू मॉडल है उसके तरीक़ेकार क्या है, क्या वो ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू है, क्या वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है. देखिए बहुत सारी मैगजीन्स हैं, उनकी पेमेंट जब होती है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है. क्या वो कस्टमर एट दी शॉप पे करेगा, क्या कस्टमर आपके पास इंक्यूबेशन में आएगा, क्या आप उसको ऑनलाइन कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो आपको कहाँ से पे करे, और थ्रू कोई बैंक का सिस्टम है वो उसके थ्रू पे करता है. की रिसोर्सेज आपके पास कौन से हैं, व्हाट की रिसोर्सेज डू अवर वैल्यू प्रोपोजिशन रुका है, हम जो वैल्यू डिलीवर करना चाहते हैं उसके लिए मिनिमम रिसोर्सेज क्या रिक्वायर्ड हैं, क्या हमें ऐप रिक्वायर्ड है, क्या हमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए कोई गाड़ी रिक्वायर्ड है, या फिर हम कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं उसके लिए हमें कौन सा मीडियम मिनिमम इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू सॉल्व इस पेन और प्रॉब्लम जिसको हम एड्रेस करें. की एक्टिविटीज़ हम कौन से परफॉर्म कर सकते हैं सब. फॉर एग्जांपल व्हाट की एक्टिविटीज़ टू अ वैल्यू प्रोपोजिशन रिक्वायर्ड, इस वैल्यू डिलीवर करने के लिए क्या की एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर सकते हैं, सो दैट वी कैन गो ऑन. एंड इसको हम फर्दर डिटेल में लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑन. की पार्टनर्स हमारे पास कौन से हैं. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पार्टनर सिलेक्शन किस तरह होनी चाहिए, क्या वो आपके पास जो आपका पार्टनर है वो आप उस स्टेज पे लेके जा सकता है जहाँ पे
आप एक एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को चैलेंज कर सकें और बिल्कुल एक डिसरप्टिव प्रोडक्ट ले आएँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी के साथ एमओयू साइन किया है, आपने किसी ऐसे पार्टनर के साथ एडवर्टाइजमेंट के लिए साइन इन किया है जो एक वेल ब्रांड है, तो हो सकता है वो आपको किसी ऐसी स्टेज पे आपकी प्रोडक्ट को जो लेके जाए जहाँ से योर सेल्स में इंक्रीज। एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर्स की जब हम बात करें तो मिनिमम वेरिएबल कास्ट और हमारे पास फिक्स कास्ट की कौन सी की एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करें, की रिसोर्सेज के लिए कहाँ कहाँ पे हमारी कॉस्ट इन्वॉल्व है और हमारी रिकरिंग और रनिंग कॉस्ट कौन सी है। वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर ऑन दिस। लेट्स इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट वांट टू प्ले दिस वन ओवर, बट ये इस मॉडल को हम थोड़ा सा अगर ऊबर को अंडरस्टैंड करना चाहें कि उनका जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है, जब हम अपना बिजनेस मॉडल डिज़ाइन करें तो उबर को थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करें कि आप देखें उबर की जो की कस्टमर सेगमेंट्स हैं वो क्या है। नंबर वन इज पैसेंजर, एंड मुझे ये ऑलमोस्ट डबल साइडेड बिजनेस है। सेकंड वन इज ड्राइवर्स। अगर पैसेंजर्स ना हो तो क्या उबर वैल्यू प्रोपोजिशन डिलीवर कर सकता है? क्या अगर ड्राइवर्स ना, पैसेंजर्स तो पहले भी थे, टैक्सी ड्राइवर्स उनको सर्व कर रहे होते थे, डिफरेंट जो यहाँ पे हमारे पास लॉजिस्टिक कंपनीज थे या डिफरेंट जो ये टैक्सी ड्राइवर्स की एसोसिएशन, ये सारे टैक्सी अड्डे पे जाते थे और वहाँ से करते थे, पैसेंजर तो आता था वहाँ पे। लेकिन ये जो ड्राइवर्स को एक मॉडर्न वे में इन्होंने यूटिलाइज किया है एज ए की पार्टनर अपने पास, दैट एक्चुअली डिलीवर्ड दिस वैल्यू प्रोपोजिशन एंड सॉल्व द पेन, जो उसको ऑटोमेट किया है थ्रू one push-up. Number one, the segment, customer segment is passenger. Number two is driver. Let's come to the value proposition. How the Uber deliver the value proposition? Number one, taxi on demand. Just one click away. कैश फ्री है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कैश कैरी करें, यू कैन पे ऑनलाइन एंड सो ऑन। इजी टू ऑर्डर कैब, शॉर्ट वेट टाइम। आप क्लिक करें और आप देखें, आपने एक्सपीरियंस किया होगा लाहौर, कराची, इवन सखर में within 4 minutes, 5 minutes, 2 minutes and 3 minutes the person will be there, आप टाइम भी बुक कर सकते हैं। now this is the driver side, passenger on demand है, easy to make additional money। ये जो ड्राइवर पहले लेट सपोज आप ये देखें, एग्जिस्टिंग ड्राइवर्स तो हैं इनके पास, जो पहले टैक्सी में भी लोग काम करते थे, लेकिन यहाँ पे एक बहुत सारा जो एक हम देखें सोसाइटी में कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं जो सुबह पढ़ते हैं और शाम को वो अपनी गाड़ी चलाते हैं, एंड दे मेक सम एडिशनल मनी एज वेल, एंड दीस टैक्सी ड्राइवर्स आर डूइंग द सेम। चैनल कौन सा इन्होंने यूज़ किया है कम्युनिकेशन के लिए? जिस तरह लॉजिस्टिक की हम बात करें, जिस तरह सेल की बात करें, एक सबसे पहला जो मोबाइल ऐप है वो उस पर आप जाएँ और क्लिक करें। सोशल मीडिया मार्केटिंग उन्होंने बड़ा की है, पर PR पर्सनल रिलेशंस भी उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। हाईली ऑटोमेटेड कस्टमर रिलेशनशिप इज हाईली ऑटोमेटेड। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, आप देखें इमीडिएट दे विल मेक यू कॉल बैक, वो उनका की एक है दैट मेक्स देम डिफरेंशिएट कंपेयर टू दी अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। जिस तरह आप देखें जो माजी में हमारे पास टैक्सी ड्राइवर्स थे, उनकी जो एक रिलेशनशिप था हमारे पास, एंड ड्रॉप एंड दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कंटिन्यूस ईमेल्स आपको पास इमीडिएट आ रहे होते हैं, आपको ईद के सीजन्स में बहुत सारे ईमेल आ रहे होते हैं। नाउ सी द की रिसोर्सेज ऊपर को, जिस आपने की एक्टिविटीज और की रिसोर्सेज की आपने बात की थी। नाउ सी द की रिसोर्सेज फॉर ऊबर के लिए की रिसोर्सेज क्या था? ऊबर प्लेटफॉर्म, राइट? प्राइसिंग एल्गोरिथम, ऑफ कोर्स द डिस्टेंस, वो जो आप कवर कर रहे हैं कैसे उसको करना है, एंड रूटिंग एल्गोरिथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गूगल मैप एंड सो ऑन। ये उनको की रिसोर्सेज चाहिए थे। विदाउट दैट उस ऐप पे, ऊबर की ऐप पे चीज़ों मूवमेंट एंड द टैक्सी लोकेशन एंड द कस्टमर लोकेशन इज वुड बी डिफिकल्ट। अगर ये ना होता तो वो उसको एग्जैक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। की एक्टिविटीज़ वो कौन से परफॉर्म कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म एंड प्लेटफॉर्म सबसे बड़ी जो है, उन्होंने जो एक ऐप डेवलप किया है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मार्केटिंग टू बैलेंस सप्लाई एंड डिमांड, ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि अगर जिस तरह आप सखर में देखें, सप्लाई तो है लेकिन डिमांड नहीं है। अल्टीमेटली नाउ क्लोज्ड इन सखर, द रीज़न इज दैट कि आपके पास सप्लाई तो है लेकिन आपके पास डिमांड है ही नहीं। और इसी तरह उन्होंने सोचा था कि यहाँ पे खैरपुर और इन सबको कनेक्ट करेंगे, अल्टीमेटली दे हैव नॉट इट। तो ये एक बहुत बड़ा इनके लिए चैलेंज था कि आप उनके पास ड्राइवर्स और प्लस कस्टमर्स का ड्राइवर ऑन बोर्डिंग जो है ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। Now come to the key partners,
ड्राइवर्स हु ओन कार्स, यहाँ पे ऊपर का देखें की पार्टनर्स उन्होंने अपने पास ड्राइवर्स को रखा है. So without drivers, they can't deliver this service. And then payment processors once receive the payment, whether online or through these, you know, the drivers, वो एक important उनके लिए partners हैं. They make the MOUs and understanding with them. Mapping data providers हैं, Google की आप map आप देख लें. जैसे कि लोकल अथॉरिटीज, जिस तरह अगर आप काम कर रहे हैं, वो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है टू गेट देयर अप्रूवल एंड सो ऑन, ये उनके साथ पार्टनरशिप करना बहुत उनके लिए, they identify as their key partners. Now let's come to the revenue streams we would have covered before, but unfortunately we can't. Pay per ride charges है, आप बैठे हैं और सफ़र करें एंड सीधे किलोमीटर्स एंड पे. प्रीमियम ओबर ब्रांड्स हैं, अब सर्च प्राइसिंग है. कॉस्ट स्ट्रक्चर पे में आप देखें प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट है, सेल्स एंड मार्केटिंग, एसएलईज हैं, ड्राइवर पेमेंट्स हैं. ड्राइवर पेमेंट, सी दी ड्राइवर्स, कस्टमर सेगमेंट्स द ड्राइवर, ड्राइवर पेमेंट्स, then key partners as a driver. So this is basically how the Uber has designed their business model. Let's just see one more example, that's a Netflix. आप अगर Netflix को भी देखें, somehow it's the same. Mass market, fans, blockbusters, movies, cable, satellites, value proposition, price, accessibility, convenience, monthly subscription revenues and DVD and so on. आप इसको नेट पे भी देख सकते हैं. You can easily understand and see the channels. Mobile app Netflix, set top boxes, cable, netflix.com पे आप जाएं, subscription and the channel they use, self service है, automated services है. You don't need any help of anyone. See the revenue side. Then key resources, content, virtual DVD inventory है, servers and so on. Key activities, video players, सॉफ्टवेयर, मेल हैंडलिंग. मेरे ख्याल से आजकल तो ये और भी अपडेटेड हो गए हैं. देन सी टू द की पार्टनर्स, मूवी एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट्स, पोस्टल सर्विसेज फॉर द डिलीवरी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ऑफ कोर्स सेट टॉप बॉक्सेस एंड हार्डवेयर मार्केट्स. कॉस्ट स्ट्रक्चर आप देखें, फिक्स कॉस्ट, डिस्क, नाउ आपको उनकी भी ज़रूरत नहीं रही. वेरिएबल कॉस्ट पर यूज़र लाइसेंसिंग एंड स्ट्रीमिंग कैपेसिटी है, कंटेंट लाइसेंसिंग एंड एग्रीमेंट्स हैं. सो now let's come see now the time comes to create your own business model. आप अपना business model कैसे create कर सकते हैं? Following on the same footstep that we just discussed in the previous slides, कि आप identify करें अपने customers को. और मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका अपनी business model design करने का वो ये है कि आप इन दो vertical edge को और एक horizontal edge को एक ही पूरा डिज़ाइन बनाएं एक चार्ट पर और अपने रूम में पेश कर दें. बिजनेस बनाने में जल्दी ना करें, बिजनेस बनाने में जल्दी करें, बिजनेस स्टार्ट करने में जल्दी ना करें. मोस्टली हमने देखा है अपने स्टूडेंट्स में और बहुत सारी एसएमई सेक्टर के जो बिजनेसेस लॉस होते हैं और लोगों का एक बड़ा सरमाया लॉस होता है, वो बिजनेस स्टार्ट करने में जल्दी करते हैं. और हम कहते हैं यहाँ पे कि आप बिजनेस बनाने में जल्दी करें और बिजनेस स्टार्ट करने में जल्दी ना करें. बनाने का मतलब है कि बिजनेस मॉडल डिज़ाइन को बनाने में आप बहुत ज़्यादा जल्दी करें. तो आप क्या करें, इस मॉडल को बनाएं, इसकी डिज़ाइन बनाएं, इसको प्रिंट ना करें, पेंसिल से बनाएं, क्योंकि ये आप में एक पैशन क्रिएट करेगा, ये आप में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा. उसको आप अपने रूम में पेस्ट करें और फिर फोकस करें. ये आप दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप अपने एक आइडिया को इस पे फोकस करें कि आपका कस्टमर कौन है, आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, और आप जस्ट पे दिस 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर अ डे, और इस पे स्टिकी नोट्स लगाएं और उस स्टिकी नोट्स को पेंसिल से लेके एंड मेक इट मोर कलरफुल. और इस बिजनेस मॉडल को डिस्कस करें मेंटोर्स के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ, इंडस्ट्री के लोगों के साथ, और the people who have the experience in that relevant in industry. Let's suppose education sector है, discuss the people who are in education sector, चाहे वो फैकल्टी हो, चाहे वो एडमिन साइड पे हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, उनकी कॉस्ट स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या हैं, वेरिएबल क्या हैं. फिर आप एक यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड
कि आप उस वैल्यू को जो आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, अपनी कस्टमर की पेन को सॉल्व करना सकते हैं, वैल्यू प्रोपोज़िशन कैसे डिज़ाइन करेंगे और डिलीवर करेंगे। एंड लेट मी टेल वन थिंग कि जब वंस यू आर गोइंग टू डू दिस, यू कैन इजीली वैलिडेट आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन इंटर रिलेटेड हो चैनल्स के साथ, आपका चैनल कस्टमर के साथ हो, आपका कस्टमर जो है वो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप हो। अगर ये आप एक बिल्डिंग ब्लॉक्स को, आप डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप एक जो बिजनेस मॉडल, जो एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल डिजाइन है वो आप नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली यू विल बी गोइंग टू फेल। अच्छा, करना क्या चाहिए? सबसे थर्ड एक्टिविटी दैट इज कंसिडर योर बिजनेस मॉडल, डज इट वर्क। आपने जब पहले इंस्टेंस में बिजनेस मॉडल बनाया, सपोज इफ इट टुक 1 month ऑफ योर्स इन डिजाइनिंग द फर्स्ट बिजनेस मॉडल डिजाइन, तो क्या डज इट वर्क? क्या आप, जब आपने पहली बार इसको बनाया, क्या आपकी रेवेन्यूज जो है वो कॉस्ट से हाई है? इज द कॉस्ट इज हाई साइड? इज देयर एनी आप ब्रेक इवन पर हैं, बैलेंस है, क्या है? आप इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट, जो इन अदर वर्ड्स आप ये कर सकते हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, कॉस्ट एंड रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है? क्या आपने जो कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया है इज दैट्स ऑन वीकली बेसिस, दैट्स ऑन अ डेली बेसिस, दैट्स ऑन अ मंथली बेसिस, और क्या ये अजम्पशन बेसिस है? सेकंड, व्हाट रिस्क टू योर बिजनेस मॉडल? आपने बना लिया, यू हैव मेड एन स्केच ऑफ दैट, नाउ सी कि इस बिजनेस को करने के लिए क्या पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं। सपोज इन्वायरमेंटल, कौन से आपका प्रोडक्ट डिपेंड करता है, वेदर दैट वुड बी अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कर सकता है। कोविड-19 इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल। माय फ्रेंड from his agriculture earnings, he got an Vigo in 2019. After 6 months he came up an idea कि मैं I want to sell that Vigo because that's from my profit, और मेरे पास पैसे हैं और मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, मैं कराची में एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। I asked which business? He said hotel। मैंने कहा क्यों? कह रहा है कि जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ नीचे एक और भी है, और लेकिन दी कस्टमर्स ऑलवेज क्राई। जो हमारे घर में जब हम उससे गुलशन में वन वी वहाँ से ऑर्डर करते हैं, तो घर में हर जो हमारी फैमिली मेम्बर है वो कहता है कि द क्वालिटी ऑफ फूड इज नॉट गुड, तो आई एम गोइंग टू चैलेंज दैट बिजनेस। अल्टीमेटली ही स्टार्टेड दैट बिजनेस, और व्हाट प्रॉब्लम क्या हुआ? ही स्टार्टेड, आफ्टर 1 month there was a COVID-19 in February, and ultimately everything was closed. So this was the risk that he never thought about कि ऐसा भी होगा, और ultimately he failed in। और अब जाके उन्होंने थोड़ा सा स्टार्ट किया है, तो for that business the key people were these cooks। और what he actually did, what I said to him, you trained these cooks, you hired from different places, आपने बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं कराची में उनसे उनको बुलाया है, आपने अपने पास रखा है। अगर आप इनको छोड़ देंगे तो आपका बिजनेस पूरा टूट जाएगा। सो यू मस्ट पे टू देम, एंड अल्टीमेटली ही पेड टू देम फ्रॉम हिज ओन पॉकेट्स। लेकिन आप अगर उसको देखें, इफ उसके पास कोई बैलेंस नहीं होता, अगर वो एक साउंड पार्टी नहीं होती, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो जब एक स्टूडेंट बिजनेस स्टार्ट करता है, एक वो बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है जिसके पास फाइनेंशियल रिसोर्स हैं ही लिमिटेड, तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप अपनी रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें ऑन द बिजनेस। देन क्या आप अपनी बिजनेस मॉडल में एक गुंजाइश मौजूद है? क्या इसको आप कंटिन्यूस इनोवेशन इसमें कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर ये नहीं कर सकते तो आई थिंक आफ्टर सम टाइम दिस बिजनेस विल कोलैप्स। आप उसमें कंटिन्यूस इनोवेशन नहीं लेके आ सकते। आई थिंक आई डोंट नीड टू डिस्कस दिस रियान एयर बिजनेस मॉडल, ये अवेलेबल है। दिस बेसिकली के रियान एयर ने एक थोड़ी सी चेंज दैट दे ब्रॉट विद द कंटिन्यूस इनोवेशन इन देयर मॉडल इज दैट कि उन्होंने आप देखें मोस्टली जो हमारे पास जो एयर इंडस्ट्री है, वो अगर एयरक्राफ्ट को खड़ा करते हैं तो दे बेसिकली चार्ज टू देम। दे ब्रॉट एन इनोवेशन के जब अगर हम ट्रैफिक लेके आएंगे आपके पास तो आप हमें पे करेंगे। सो दिस वाज सॉर्ट ऑफ मॉडल। लेट्स डिस्कस दिस डबल साइडेड बिजनेस मॉडल। थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करते हैं। डबल साइडेड बिजनेस मॉडल क्या होता है? लेट्स सपोज सी द गुड एग्जांपल ऑफ जियो न्यूज़। उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो ऐसा कंटेंट डेवलप करें जिसकी वजह से लोग वो प्रोग्राम देखें। फॉर एग्जांपल कामरान खान, राइट? वंडरफुल कंटेंट, वंडरफुल पर्सन, रिच एक्सपीरियंस,
उस कंटेंट देखने के लिए लोग बैठेंगे वहां पर, and once people are there to watch that particular program, there will be advertisers जो अपनी कंपनी की ब्रांडिंग करना चाह रहे होंगे तो वो वहां पे होंगे। तो इसको थोड़ा सा सिंपल अंडरस्टैंड करें। एदी हमारे पास इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल। एदी का बिजनेस इट्स डबल साइडेड बिजनेस तो नहीं है, सोशल एक्टिविटीज है, डबल साइडेड है। कंटेंट और की एक्टिविटी क्या है? सर्व टू द पुअर, right? Double one-sided serving to the poor. Another side is the people who are supporting the AD in order to carry out कि वो उनको अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट आई मीन टू कंपेल दैट देयर द नीडी पीपल, अंडरप्रिविलेज्ड पीपल आर देयर, we need to serve them. Sakhar IB University का double sided business model है। We are not in profit, we are the public sector organization। सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए I have aired that Sakhar IB University double sided business model किस तरह है कि 75% students at Sakhar IB University is on scholarship। हम डबल साइडेड कैसे हैं? हम इसको प्ली करते हैं, हम इसको प्लीड करते हैं उन लोगों को कि क्या मेरिट, क्वालिटी और एक्सीलेंस हम कैसे डिलीवर करें, हमारी क्वालिटी के पैरामीटर्स क्या हैं, और हमारे पास इतने बच्चे हमारे पास ऑन स्कॉलरशिप्स हैं एंड दे बिलोंग टू द अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज अराउंड फ्रॉम द कंट्री and we pitch this, plead this to the donors, or ultimately they support to these programs like we have the brokers देखें stock exchange में दो sided एक आप one center place in order to serve these people। Google का double sided business model है, थोड़ा सा just thoroughly we need to discuss। दो sided business model है, इंटरनेट यूजर्स हैं, हम आप हैं, और दूसरी एडवर्टाइजर्स हैं। आप कभी भी गूगल का जीमेल अकाउंट खोलें, जाएं और खोलें, कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज वो उसको नहीं करवा रहे। फ्री इंटरनेट रिसोर्सेज आप देखें सारी यूज करें एंड देयर इज नो चार्ज। लेकिन कंटेंट असेंस आप देखें पे पर क्लिक है, और जो एडवर्टाइजर्स हैं उनके लिए। नाउ सी चैनल्स है, इंटरनेट हमारे लिए है, वेब इन डायरेक्ट सेल्स एंड ईमेल फॉर दोस पीपल हु वांट टू टेस्ट। जीमेल आप देख लें, सर्विसेज है फ्री टू अस, एंड ऑटोमेटेड मैनेजमेंट, गूगल एनालिटिक्स अकाउंट्स और वो सारी चीजें उसमें अवेलेबल हैं। एड रेवेन्यूज, सी दी टू साइडेड दे आर सर्विंग, बट उनकी जो रेवेन्यू साइड है वो जस्ट वन इज दैट दोस हु वांट टू एडवर्टाइज। एंड की आप रिसोर्सेज देखें, सर्च इंजन और सारी चीजें, यू कैन डिफरेंट द की एक्टिविटीज एंड की रिसोर्स, अकाउंट मैनेजमेंट, पार्टनर एंड ऑल दीज थिंग्स। एड डिस्प्ले पार्टनर्स, बस दैट्स इट। Hosting IT infrastructure costs, of course, it's a huge one, and they have to this. So, clarify your business model assumption. देखें ये फोर्थ स्टेप है दैट वी डिस्कस कि प्रोसेस क्या है बिजनेस मॉडल डिजाइन करने को। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपने सबसे पहले ये सोचना है इसको, वंस यू हैव प्लेस्ड दिस योर बिजनेस मॉडल ऑन अ वॉल, और आपने स्टिकी नोट्स उसमें लगाए हैं, आप उधर साइड में कलरफुल 2 more लेबल्स पुट करें। क्या ये जो अजम्पशन मैंने दिया है, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है, ये जो कॉस्ट स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये जो सारी चीज़ें बनाई है, क्या ये अजम्पशन बेस्ड हैं, ये फैक्ट बेस्ड हैं? क्या मैंने इस पर कोई होमवर्क किया है? क्या इसको किसी एक्सपीरियंस बंदे ने वैलिडेट किया हुआ है? क्या इससे पहले जो इंडस्ट्री में लोग जो चीज़ें बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनकी जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है इस मशीनरी पे ये है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट फीस ये है, स्टूडेंट पे कॉस्ट एक यूनिवर्सिटी की इतनी आती है, पर लेक्चर पे फैकल्टी को इतना यूनिवर्सिटी पे करती है, असिस्टेंट प्रोफेसर हायर करने पे ये कॉस्ट है। तो ये आपने उनको दोनों को आइडेंटिफाई करना है। देन कम्स विद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल ऑफ दीज 9 blocks over here and then put over here, is this an evidence based or assumption based? एविडेंस बेस्ड, assumption based। सपोज आपने लिखा कॉस्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पर कॉस्ट स्ट्रक्चर में आपने वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट है। क्या ये एविडेंस बेस्ड है कि लेट सपोज एक मशीन पे आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 10,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल? क्या दिस डेटा प्रोवाइडेड यू बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट मशीन, या फिर आपने जस्ट थारोली मार्केट से पूछा और खुद सोचा कि मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा, ये करेगा, इतनी प्रोडक्ट डिलीवर करेगी, ये कॉस्ट होगी? तो व्हाई वी आर डूइंग दिस, यू विल कम टू नो दैट there may be the variations in assumptions and there may not be any variations in these. So this is how basically you will be doing that. ये वो सारी चीजें हैं जिनको आप टेस्ट करेंगे
आप अपनी चैनल, कस्टमर रिलेशनशिप, रेवेन्यू स्ट्रीम्स एंड असम्पशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है वो यहाँ पे हो रही है। क्योंकि अगर हाईली ऑटोमेटेड है फॉर एग्जांपल उबर के लिए, तो दे हैव टू पे ह्यूज कॉस्ट ओवर हियर, राइट। आपकी चैनल है, जिस तरह फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा हेवी लॉजिस्टिक इन्वॉल्व है, तो आप देखेंगे आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट यहाँ पे होगी। आपकी थ्रू एयर डिलीवरी है, क्या है, मैंगो आप देखें, अगर बहुत सारे लोग वो उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अल्टीमेटली दे कांट, बिकॉज वो उनके बस की बात नहीं है, दे डोंट अंडरस्टैंड दी चैनल कि उसकी पेरिशेबल लाइफ और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो जस्ट वांट टू गिव दिस ब्रीफ टू यू। प्रिपेयर फॉर कस्टमर्स। आप जब कस्टमर के पास अपनी प्रोडक्ट को वैलिडेट करने जा रहे हैं तो आपको करना क्या है, आपके पास सेल्स मटेरियल होना चाहिए, एंड यू बेटर अंडरस्टैंड सेल्स मटेरियल क्या होना चाहिए। दैट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, आपके पास क्या प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरल बात करें, आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए कि क्या मेरा प्रोडक्ट है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, किस उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए डिलीवर कैसे करेंगे, कस्टमर को प्रेजेंटेशन आप कैसे देंगे, इंडस्ट्री को प्रेजेंटेशन आपको कैसे देंगे, आपकी चैनल स्ट्रेटजी की जो आपकी डिस्क्रिप्शन है वो आपके पास होना चाहिए। दिस इज हाउ basically this funnel is available on website. I just saw on that and I just pasted over here. ये बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, वो बताती है कि 70% ये प्रोसेस में, 20% यहाँ पे, 30% पे है, बट आई वुड से कि these are the key areas कि आप किस तरह अपने कस्टमर के पास जाने के लिए जाएंगे। इकोनॉमिक बायर है, इकोनॉमिक बायर आप उसे कह सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो आपके पास इकोनॉमिक बायर में in Sindhi, if there is some Sindhi people, Shah Abdul Latif Bhitai, Imran, you better know, one of the best poet and renowned poet after Allama Iqbal. Sindhi, he said in Sindhi that log bahe lahwaro tu ucho वह उभार। इस saying के अगर लोग पानी की तरह नीचे की तरफ बह रहे हैं तो आप ऊपर की तरफ बहें, मतलब आप उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाएं। जिस तरह वन ऑफ द वंडरफुल एग्जांपल ऑफ सिंधी पल्ला फिश, राइट। सिंधी पल्ला जो है वो जब समंदर के साथ दरिया का पानी मिलता है तो वो ऊपर की तरफ गिलगित बल्तिस्तान जाने की कोशिश कर रहा होता है, फिर हम जाके सखर में उसको पकड़ के खत्म कर देते हैं अल्टीमेटली। तो ये इकोनॉमिक बायर वो लोग हैं, आप इनको ढूंढें, और ये लोग जो है वो आपके सक्सेस में बड़ा की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अदर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उस बाइंग प्रोसेस में कौन से हैं, स्टेप्स, ड्यूरेशन ऑफ सेल्स प्रोसेस, वो कौन सी स्टेप्स हैं आप फॉलो उसमें करेंगे, 1 सेकंड, फॉर एग्जांपल टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा, आपको मीट करने में कितना टाइम लगेगा, एक्सपेक्टेड डील साइज आपकी क्या हो सकती है, मिनिमम मैक्सिमम। आप कभी जाएं उस पर अलीबाबा पे और बहुत सारी में आप देखें, वो जब प्रोडक्ट्स लिखी होती है, चाइनीज वेरी ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स, लेकिन वो कहते हैं कि मिनिमम साइज आप ये ऑर्डर करें तो हम डिलीवर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो आपने ये करना बहुत जरूरी है। और आपकी कैपेसिटी क्या है, कितनी साइज आप, सपोज मैंने कहा कि अच्छा मिनिमम साइज इज 1000 यूनिट्स, ओके आई एम ऑर्डरिंग, लेकिन मैंने उनको कहा नो आई नीड 1 लाख यूनिट्स, तो कंपनी कहेगी नो वी आर वेरी स्मॉल यूनिट, वी कांट प्रोड्यूस दीज 1 लाख यूनिट्स, बट वी कैन प्रोवाइड यू 1000 इन 1 मंथ। तो आपने ये चीजें आपने आपके साथ बैठ के इस पे काम करना है। बिजनेस मॉडल डिजाइन इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, यू हैव टू प्लान इट। जल्दी नहीं करनी, आपने स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को कवर अप करना है। अच्छा, थोड़ा सा हमें जल्दी भी करना है, टाइम ओवर रन हो रहा है। जी बिल्कुल, दिस इज ऑलमोस्ट लास्ट वन, जस्ट 2 to 3 स्लाइड्स आर रिमेनिंग। ये 3 क्वेश्चंस आर की फॉर बिजनेस मॉडल डिजाइन। वैलिडेट कैसे आप कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, और उसको अपडेट कैसे करें। डिड यू सेल इनफ टू वैलिडेट योर वैल्यू प्रपोजिशन, क्या आपने इनफ सेल किया है अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन को वैलिडेट करने के लिए। इतने यूनिट्स कहती हैं कि आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन को वैलिडेट कर पा रहे हैं। हैव यू आइडेंटिफाई रिपीटेबल कस्टमर एक्विजिशन मॉडल, कस्टमर आया फिर आएगा नहीं आएगा, मेंडिस के पास तो कभी नहीं आएगा, राइट। जिस तरह जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल शेयर किया अपनी परचेसिंग का। डिड यू डेवलप अ सफिशिएंट इनसाइट टू स्केल योर बिजनेस, क्या आप उसको स्केल अप कर सकते हैं। आपने 1 यूनिट प्रोड्यूस किया, क्या आप उसको आगे लेके जा सकते हैं या नहीं सकते। इफ यू आंसर दीज 3 क्वेश्चंस यू हैव डन योर जॉब। लेट्स कम टू हियर। If you answered yes to all of the questions, you have done your job. You achieved your target, right? Now you are ready to go in. You can take an adventure and you can start that particular business. If you answered yes to the first question, but no to either of the other 2 questions, then change your sales approach. There's some problem in your sales approach. उधर किधर कहीं पे प्रॉब्लम है, उसको दोबारा
स्क्रूटनाइज करें, रीचेक करें, डिस्कस करें, एक्सपर्ट लोगों के साथ मिलें, रिलेवेंट लोगों के साथ मिलें। अगर आपने सारे क्वेश्चंस को, इफ यू आंसर नो टू द फर्स्ट क्वेश्चन, देन समथिंग इन द वैल्यू प्रोपोजिशन प्रोसेस वाज नॉट क्वाइट राइट। मैंने शुरू में कहा था कि वैल्यू प्रोपोजिशन इज द कोर फॉर योर बिजनेस मॉडल डिजाइन। आपने दोबारा जाके वो फर्स्ट प्रोसेस पे जाना है, दैट्स द फर्स्ट और है एज अ आइडिया एंड आवर वैल्यू प्रोपोजिशन, उधर जाना है और उसको रीड देखना है, यार यहाँ पे आइडिया में देयर इज अ प्रॉब्लम इन समवेयर वैल्यू प्रोपोजिशन, उसको आपने करेक्ट करना है। सो बिफोर गोइंग इनटू द बिजनेस मॉडल डिजाइन मस्ट गो ऑन द वैल्यू प्रोपोजिशन बिकॉज दैट वुड वैलिडेट द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। ये पूरी प्रोसेस है, आप किस तरह आप कर सकते हैं। दिस वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, इज पोजिशनिंग स्टेटमेंट। इसमें आपने क्रिएट करना है, आपने फॉर होम यू आर क्रिएटिंग वैल्यू, किसकी आप प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व कर रहे हैं, हु इज ही, राइट। आपकी प्रोडक्ट जो है वो फिर क्या है कि कैसे आप उसको सॉल्व करें, डिलीवर कैसे करें, ठीक है। और उस प्रोडक्ट जो है वो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करें आप, यू हैव टू डिफरेंशिएट इट, और उसको अपने कॉम्पिटिटर के साथ आप किस तरह जो है वो मैचअप कर पा रहे हैं कि क्या वो एक डिफरेंशिएशन पोजीशन पर है, जो क्या आपका जो कॉम्पिटिटर है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। ये चीज़ें फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने उबर की डिस्कस की है, टैक्सी की, इट्स अ वंडरफुल एग्जांपल। टैक्सी पे हम बाहर जाते थे, इंडिविजुअल टैक्सी ढूंढने की कोशिश करते थे, टाइम लगता था, सारी चीज़ें। उबर ने उसको डिफाइन किया कि जस्ट 1 क्लिक अवे, राइट। तो ये अनलाइक है कि आप जो है आपके हाउ यू डिफाइन, वी हैव असेंबल्ड क्रिएटेड इन्वेंटेड अ प्रोडक्ट दैट, ठीक है। उस प्रोडक्ट की फिर आपने सारी वो जो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो करेंगे। नाउ दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ योर बिजनेस मॉडल डिजाइन। नाउ यू हैव टू अपडेट, ये जो आपने स्टिकी नोट्स बार बार डिजाइन कर रहे हैं, लगा रहे हैं साइड में, उनको निकालें और इसको फाइनल टचअप दें और सी नाउ हाउ योर बिजनेस मॉडल इज एक्चुअली is looking. You are ready to implement your business model if you pass through from all of this process. So now plan your next step. ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कर तो लिया बिजनेस मॉडल डिजाइन, टास्क किसको देना है आपने, राइट। क्या वो कब डिलीवरेबल है, ठीक है, डेडलाइन क्या है, रेस्पॉन्सिबल कौन है, टीम में को क्या बंदा क्या कर रहा है, किसका रोल क्या है। ये बहुत ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास एक पैशनेट होकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो फंस जाते हैं जाके। बिजनेस मॉडल डिजाइन तो क्लास में पढ़ लेते हैं, बूट कैंप्स में बना लेते हैं, बहुत अच्छा बना लेते हैं, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने में फंस जाते हैं। जिस तरह हमारे साथ बहुत बड़ा अलमिया है सकराई यूनिवर्सिटी में, वो इट्स मिनी पाकिस्तान। पीपल फ्रॉम गिलगित टू थर और इन सकराई यूनिवर्सिटी जब 5 साल पढ़ते हैं बड़ी मोहब्बतें हो जाती हैं, एक साथ रहते हैं एक ही रूम में, सिंध पंजाब बलूचिस्तान, 4 बच्चे 5 बच्चे एक ही रूम में, हम जानबूझ के उनको एक ही रूम में प्लेस करते हैं, सो लर्न कल्चर एंड फ्रेंडशिप विद ईच अदर। वो आके मेरे पास आते हैं, सर वी हैव दिस वंडरफुल आइडिया, वी वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। मैं कहता हूँ आ जाए भाई, कोई इशू नहीं है, पहले तो बैठ जाएं, काम करना तो शुरू करें। और जब 4th सेमेस्टर आता है, one goes to Gilgit, another goes to Lahore, and third one goes to Thar, and fourth one goes to Hyderabad, and ultimately खत्म। तो ये फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रेंडशिप और इगोइज्म को बाहर निकाल के लॉन्ग टर्म और एक कंस्ट्रक्टिव वे में यू हैव टू थिंक ऑन एंड असाइन इन ग्रुप रिफ्लेक्शन इफ एनीबॉडी वांट टू गिव इन, अदरवाइज इट्स फाइन। ये थोड़ी सी चीजें आई हैव जस्ट सीन फॉर यू पीपल। Business model describes how your company creates, delivers and captures value. Of course ये Alexander Osterwald की definition है, लेकिन ये स्टीव ब्लैंक ने भी प्लस माइनस यही बात की है। Remember, ego, इन्होंने कहा है कि luck is not a business model। मैं कहता हूँ कि egoism का भी है वो, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। Unless you have tested the assumptions, your business model first outside the building, your business plan is just creative writing. गेटिंग पॉइंट। ये रूम में बैठ के आप ना करें इमरान, जिस तरह हम करते हैं यहाँ पे बैठ के। एवरी सिंगल इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ मेजर बिजनेस मॉडल एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड डिसरप्शन, क्योंकि बिजनेस मॉडल में इनोवेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आप भी जो आज एक बिजनेस मॉडल डिजाइन परफेक्ट है, कल को ये डिसरप्ट हो जाएगी। somebody is going to disrupt you again. Good design can't fix broken business models. सो ये जो 9 ब्लॉक्स है ना, ये ब्रोकन नहीं होने चाहिए, ये एक चेन है। सो वैल्यू प्रोपोजिशन इज, इमरान बहुत इस पे फोकस करते हैं, ये आपकी हर्ट है ऑफ योर बिजनेस मॉडल डिजाइन। तो बाकी सारे आर्गन्स को आपने लिंक करना है, इंडिविजुअल डिफाइन नहीं करना।
स्टीव ब्लैंक मुझे बड़ा पसंद है, इफिफिनी बुक इसकी मुझे आई लाइक इट, इट्स अ वंडरफुल बुक. सो ही सेज startups don't fail because they lack a product, they fail because they lack customers and a profitable business model. So आप अंडरस्टैंड करें, बिजनेस प्रोडक्ट नहीं है. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much, sir. It was a really great session. I learned a lot. And that's the whole idea. हम different school of thoughts के लोगों को इसीलिए लाना चाह रहे थे कि ideas की cross pollination हो, और ये ना हो कि सिर्फ मैं एक dimension से, एक angle से मैं ही बताता रहूं. This is wonderful, sir, and I'm really proud of कि we got you. और एक नई dimension हम पूरी लेके आए. Though this is a very structured approach of developing a business model canvas. Honestly, मैं भी इतना अच्छा, मेरे पास भी इतना अच्छा lecture नहीं है, और मैं भी इतना अच्छा बिजनेस मॉडल कैनवस को डेवलप नहीं करता. मैं समझा सकता हूँ, बट आपने बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज दी है. स्टेप बाय स्टेप आपने एक पूरी प्ले बुक दे दी है, पूरी एक गाइड बुक दे दी है कि कैसे आपने बिजनेस मॉडल कैनवस को बिल्ड करना है, और साथ साथ समझते रहे. आज एक बहुत अच्छी हमने समरी वीडियो अलेक्जेंडर ऑस्टरवाल्डर ने, स्ट्रेटेजाइजर ने बनाई हुई है, वो शेयर की है. तो आई वुड रिकमेंड स्टार्टअप्स के, अगर आप वो थोड़ी सी इंट्रो वीडियो देख लें, सर का लेक्चर थोड़ा सा सुन लें, और ये गाइड बुक सारी की सारी इंप्लीमेंट कर लें. So that would be the beginning of your startup, not just the beginning, बल्कि एक इमरजेंस क्रिएट होगी, एक स्टार्टअप बनता हुआ आपको नजर आएगा इसमें से. सर आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि ये लेक्चर स्लाइड्स अगर आप हमसे शेयर करते हैं, ताकि हम तब तमाम पार्टिसिपेंट से शेयर करें. सर इट्स योर एसेट. सर थैंक यू वेरी मच सर. हम आपके स्टूडेंट्स हैं, we have learned many things from you, and design thinking and design attitude, sir. Absolutely, sir. I am your student. We are friends. We are learning from each other. इसी तरह से नॉलेज ग्रो करता है सर. एंड आई रियली लव दिस कि आपने ओपननेस के साथ हर चीज़ शेयर की इतनी डिटेल में. दिस इज होल आइडिया कि हम हर चीज़ ओपन सोर्स करते जा रहे हैं, ताकि पाकिस्तान में एक सोसाइटल चेंज आ जाए, यहाँ स्टार्टअप्स नॉर्मल बन जाएं. चाइना में 50,000 स्टार्टअप्स पर मंथ बनते हैं. आई रियली विश टू सी अ डे इन नेक्स्ट 2 to 3 years. और जो हमारा तो मिशन भी वही है कि पाकिस्तान में हर महीने 1,000 स्टार्टअप बनना शुरू हो जाए. हम 10-12 हज़ार के नंबर टच करें एक साल का. दैट्स वेयर द रियल चेंज विल स्टार्ट टू हैपन. थैंक यू वेरी मच. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. वी ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम and everyone is putting their efforts. I think you have taken a wonderful initiative. ये जो 4 हफ्तों का ऑनलाइन सेशंस और सारे लोगों को एक जगह पे कनेक्ट करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बट वंडरफुली यू हैव डन दिस. और मेरे ख्याल से बाकी दोस्तों ने भी इसी तरह इस चीज़ को आगे बढ़ाया होगा. आई थिंक वंडरफुल मिशन. वी विल सपोर्ट यू. पाकिस्तान में किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटी जो हमारी यूथ को, एक पोटेंशियल यूथ और एंटरप्रेन्योर यूथ बनाने में हमारी जहाँ पे ज़रूरत होगी, सखर IB यूनिवर्सिटी वुड बी ऑलवेज देयर फॉर यू. जस्ट वी आर लाइक ओवर one call away from you. Anytime, whenever you want, we will be with you. And if anyone have a question, अगर किसी ने कोई मैसेज किया और कोई क्वेश्चन हो तो आई एम देयर टू आंसर. ज़्यादातर लोगों के इससे कमेंट्स हैं कि स्लाइड्स उनको कह रहे हैं बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, दे वुड लाइक टू हैव द स्लाइड्स, इस तरह के और फ्रेज के कमेंट्स हैं सर ज़्यादा. ओके, ठीक है सर. थैंक यू वेरी मच. ऑडियंस, हम स्लाइड्स आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आ जाएंगी, फेसबुक पे भी हम इसको कर देंगे, पोस्ट कर देंगे. थैंक यू वेरी मच सर. सर वंस अगेन really grateful and honored to have you, sir. Thank you very much. I'm really honored as well, and thank you for your kindness and support as well. Sir, thank you very much. Always there for you, sir. Thank you. And IBA Sakkar is another planet. If you visit interior and so IBA Sakkar is another planet. Please do visit. Whoever wants to visit Sakkar. Sir, बिल्कुल. यहाँ पे मैं मेरे ख्याल से हमारी ऑडियंस यहाँ पे है. इस साल efforts goes to the Professor Nisar Ahmad Siddiqui, जिन्होंने अपनी 16 साल वो लाइफ की वो साल जब लोग रिटायर होके घर में बैठते हैं और अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, या आप किसी अपनी फार्म हाउस में रहते हैं. बट निसार सिद्दीकी डिवोटेड हिज होल लाइफ, जो ये 16 साल उसकी जो थे इस इंस्टीट्यूट को बनाने में, 2 कमरों से, और आज एक यूनिवर्सिटी की शेप में और वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. वी आर नियर टू AACSB एज वेल. तो उनकी काविशें हैं और वी वर्क विद हिम. आई वर्क विद हिम अराउंड 6 years. होपफुली इंशाल्लाह हम इस मिशन को आगे लेके जाएंगे. और उन्हें अब ज़बरदस्त बात की है. मैं इन बच्चों को भी कहना चाहूँगा, सबको जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कि डोंट कंप्लेन ऑफ डार्कनेस, लाइट अ कैंडल.
आप Absolutely. वो अपना 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 जो है ना अपनी राह में जो आप मशाल जला सकते हैं, आप वो काम करें, बाकी दूसरे लोगों के लिए छोड़ें, वो इमरान करेगा, इख्तियार करेगा, कोई और कर देगा, आप अपना काम करते जाएं आगे, तो इंशाल्लाह वी विल मेक दिस कंट्री एन एंटरप्रेन्योर कंट्री एंड would be an example for rest of the world as well, inshallah. एब्सोल्युटली सर, मैं भी वर्ड्स कुछ ऐड करना चाहूँगा। प्रोफेसर सिद्दीकी साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। ही डिवोटेड हिज लाइफ एंड ही क्रिएटेड एज, क्या कहना चाहिए, आइलैंड ऑफ excellence in Sakkar, in the form of IBS Sakkar, and he devoted his life. And we are with you, sir. We are all together to make Pakistan an entrepreneurial nation. Honored, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Have a good day. Thank you. Audience, खुदा हाफिज फॉर टुडे, एंड कल मिलेंगे हम वैलिडेशन के साथ, और एक सक्सेस स्टोरी अपने पाकिस्तान से बहुत अच्छी आपके साथ शेयर करनी है। टुमारो विल बी शेयरिंग दैट विद यू। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज।